السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اور کم سخنی یعنی لغو اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی صفت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، تو اس کے پاس اور اس کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا القاء ہوتا ہے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ جبلی ضمنی انتخابات میں فتح سے کانگریس پارٹی کی ذمہ داری میں مزید اضافہ ہوا ہے، وہ ریاست کو ترقی دلانے کے لیے مزید کوشش کریں گے۔ میڈیا سے سی ایم ریونت ریڈی کا خطاب۔ اس پروگرام میں ٹی پی سی سی چیف MLC مہیش کمار گوڈ اور ریاستی مشیر محمد علی شبیر کے علاوہ ڈپٹی سی ایم ٹی وکرماکار کا ہمراہ موجود۔ ایڑپلی منڈل کے جانکا پیٹ میں واقع اشوک ساگر تالاب میں ضلع کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی کے ہمراہ ریاستی حکومت کے خصوصی مشیر پی سدرشن ریڈی نے مچھلیوں کے بچوں کی اجرائی۔ بیلپور منڈل کے مقام پر 1.3 کروڑ روپے فنڈ سے شروع کیے جانے والے منڈل پریشد پرائمری اسکول بھون کی تعمیری کاموں کی افتتاح تقاریب سابقہ وزیر بالکنڈہ MLA ویملا پرشانت ریڈی نے کی شرکت۔ دھوکہ دینا ہریش راؤ کی فطرت میں شامل ہے۔ میدک میں انعقاد عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا کا اظہار۔ BRS کارگزار صدر کیٹیا نے ضمنی انتخابات میں مقابلہ کرنے والی M سنیتا کے قیامگاہ پر ان کے ارکان خاندان سے کی ملاقات، وہ پارٹی کی جانب سے ہر ممکنہ طور پر مدد فراہم کرنے کا دیا تیقن۔ رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے ہمالیہ کی چوٹی پر چڑھنے والی ملاوت پورنا سے ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسہ۔ شہر کے مشہور تعلیمی ادارے کی اسکول بس کے نیچے آنے سے ہوئی کلینر کی موت۔ ارسا پلی علاقے میں پیش آیا واقعہ۔ ضلع مرکز نظام آباد میں ایک معروف تعلیمی ادارہ کی اسکول بس سے کلینر کے نیچے گر کر ہلاک ہونے کا واقعہ سامنے آیا، جس نے مقامی سطح پر ہلچل مچا دی۔ یہ حادثہ ہفتے کی صبح پیش آیا۔ شہر کے ایک معروف پرائیویٹ اسکول کی بس ارسا پلی علاقے میں طلباء کو لینے جا رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق بس ڈرائیور لاپرواہی سے گاڑی چلا رہا تھا اور بس کو پیچھے کرنے کی کوشش کے دوران کلینر جکولا کشور وینکٹیا حادثاتی طور پر نیچے گر گیا اور موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ ضلع کے اس مشہور تعلیمی ادارہ کی مینجمنٹ کو یہ جانچنا چاہیے کہ اتنی لاپرواہی سے گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو کس بنیاد پر تعینات کیا گیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اگر اسی ڈرائیور کی لاپرواہی کے باعث بس میں سوار طلباء کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا تو اس کی ذمہ داری کون لیتا۔ جکولا کشور، جو نظام آباد رورل منڈل کے گاؤں دھرمارم کا رہائشی تھا، صرف 2 دن پہلے ہی اسکول بس میں کلینر کی حیثیت سے شامل ہوا تھا۔ اطلاع ملتے ہی 6 ٹاؤن پولیس موقع پر پہنچی، مقدمہ درج کیا اور تحقیقات کا آغاز کر دی۔ రోజు మాదిరిగానే వచ్చి పిల్లల్ని ఎక్కించుకొని వెళ్తుంది। యాక్చువల్గా ఈ బస్సు టర్న్ అయ్యి లోపలికి వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చే సమయంలో మరి డ్రైవర్ అజాగ్రత్తనా లేకపోతే క్లీనర్ చూసుకోవాలని తెలియదు, కానీ వెనక బస్సు డ్రైవరు అజాగ్రత్త వలన క్లీనర్ అజాగ్రత్త తెలియదు, వెనక టైర్కి వచ్చి ریاستی حکومتی مشیر بودن MLA سدرشن ریڈی نے جانکا پیٹ کے اشوک ساگر تالاب میں مچھلیوں کے بچوں کی اجرائی عمل میں لائی۔
ریاستی حکومتی کے خصوصی مشیر و بودن MLA سدرشن ریڈی نے جانکم پیٹ کے اشوک ساگر تالاب میں مچھلیوں کے بچوں کی اجرائی عمل میں لائی۔ اس موقع پر قیام عمل میں لائے گئے اجلاس سے انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ حکومت 100% سبسڈی کے تحت ماہی گیروں کے سنگموں کو مچھلیوں کے بچوں کو فراہم کر رہی ہے۔ اس سے متعلق عہدیداروں کو دی گئی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے ہوئے وقتاً فوقتاً اس کی معیار کا جائزہ لیتے ہوئے کوئی کمی یا کوئی نقص ہو تو اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس میں ملوث ہر ایک شخص کے خلاف کارروائی کرنے کی ضلع کلکٹر کو احکامات جاری کیے۔ انہوں نے منڈل سطح کے تحصیلدار MPDO کو ہر روز تنقیحی عمل میں لانے کی تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام بھی ماہی گیروں کو سہارا دیتے ہوئے ان کی ہر ممکنہ طور پر مدد کرنا نہایت ضروری ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ضلع کلکٹر TVN کرشنا ریڈی، ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان، ماہی گیری ڈپارٹمنٹ AD انجنییا سوامی معین الدین کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ దాంట్లో ఇచ్చేటప్పుడు కూడా 5% ఎక్కువ తీసుకోవాలి, పెద్దగా ఉంటే. చిన్నగా ఉంటే 10% ఎక్కువ తీసుకోవాలి. చిన్న వేయద్దు, దయచేసి చిన్న వేయద్దు. చిన్న వేస్తే కలెక్టర్ గారికి చెప్పండి, రిజెక్ట్ చేస్తాం. ఈ సైజులో ఉండాలి. అంటే తొందరగా అంటే మొట్టాటి చనిపోకుండా ఉంటాయి కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆ విధంగా వేయాలని. 7-8 మంత్స్లో 20-30% చనిపోయినా 75 కిలోలు వస్తాయి. 75 కిలోలు కిలోకు 90 నుంచి 100 రూపాయలు. మరి 75,000, 50,000, 60,000 వస్తాయి. అది మంచి సోర్సెస్, అన్నిటికంటే మంచిది. కాబట్టి దయచేసి నాయకులు కానీ, సంఘ నాయకులు కానీ, ఆఫీసర్లు కానీ వాళ్ళ జీవితాలను మీ పైన పెట్టాలి. మీ నిర్లక్ష్యంతో చిన్న చిన్న తప్పులైతే గంగలిపోతుంది, కానీ మీ నిర్లక్ష్యంతో। महकमे में पुलिस ने शहर के 52 पहाड़ी इलाके में गाड़ियों की तनखी अमल में लाते हुए खुश्क गांजा मुंतकिल करने वाले एक शख्स को लिया तहवील में। एक्साइज डिप्टी कमिश्नर V स्वामी रेड्डी के अहकामात के मुताबिक इन्फोर्समेंट सेक्शन निजामाबाद टीम AES CH वाल्स कुमार के ज़ेर एहतमाम CIS A वेंकटेश L बाला किशन की जानिब से 52 पहाड़ी एरिया में गाड़ियों की तनखी अमल में लाने के दौरान हासिल करदा इत्तलात के मुताबिक एक शख्स खुश्क गांजे को बाइक पर मुंतकिल करते हुए फरोख्त करने के मौके पर इस शख्स को तहवील में लेकर इसके कब्जे से 260 ग्राम खुश्क गांजा और एक बाइक के अलावा सेल फोन को जब्त किया। शहर के सुभाष नगर में रियासती हुकूमती मुशीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी से रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अरकान ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में रियासती हुकूमत के खुसूसी मुशीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी से रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अरकान ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में सदर पंडेरी नाथ, जनरल सेक्रेटरी गंगा किशन, फाइनेंस सेक्रेटरी रविंदर रेड्डी, एसोसिएशन प्रेसिडेंट स्वामी दास, पब्लिक सिटी सेक्रेटरी राजू प्रकाश और अरकान कुमारा स्वामी के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में PDSU महासभा में नई एग्जीक्यूटिव कमेटी को बिला मुकाबला इंतखाब किया गया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा PDSU महासभा में नई एग्जीक्यूटिव कमेटी को बिला मुकाबला इंतखाब करने का PDSU निजामाबाद जिला सदर सेक्रेटरी R गौतम कुमार ने इजहार किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी PDSU सदर के तौर पर A अक्षय और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से K गौतम राज, V नायब सदर के तौर पर T रविंदर, असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर सात्विक और खजांची के तौर पर J राकेश, एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर जयंती और प्रिंस, दिनेश, कार्तिक, विनिल, मणिकंठा, हुसैन, निखिल और दीगर को इंतखाब अमल में लाया गया। वेलपुर मंडल के मुकाम पर 1.3 करोड़ रुपये फंड से शुरू किए जाने वाले मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल भवन की तामीरी कामों की इफ्तिताई तकारीब में बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत।
वेलपुर मंडल के मुकाम पर साबिका MP राज्यसभा मेंबर जोगन्नीपल्ली संतोष की काविशों के सबब मंजूर होने वाले 1.3 करोड़ रुपये फंड से शुरू किए जाने वाले मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल भवन की तामीरी कामों का संगे बुनियाद प्रोग्राम में साबिका वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर आबाई मुकाम में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए तकरीबन 2.20 करोड़ रुपये फंड की मंजूरी अमल में लाने वाले साबिका MP संतोष कुमार को मौजू के अवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर किया गया। భవనం పాతది ఉండే అదంతా కూలిపోయే దశలో ఉంటే జోగిన్పల్లి సంతోష్ కుమార్ రాజ్యసభ ఎంపీ వారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అన్న మా గ్రామంకి పాత పాఠశాల భవనం కూలిపోతూ ఉన్నది, ఫండ్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన 1,03,00,000 రూపాయలు రాజ్యసభ నిధుల నుండి ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది. సంతోష్ కుమార్ గారితో నా అనుబంధం మా తండ్రి సురేందర్ రెడ్డి గారితో ఉన్న అనుబంధం ఉద్యమ కాలం నుండి ఉండే కాబట్టి ఆయన అడగగానే మన వేల్పూరు గ్రామం పేరు చెప్పగానే మీ సొంత గ్రామం అయితే తీసుకోండి అన్న అని చెప్పి 1,03,00,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. నేను నా వేల్పూరు గ్రామ ప్రజల పక్షాన, VDC పక్షాన, స్కూల్ పక్షాన, మొత్తం ఈ ప్రైమరీ స్కూల్ ఉపాధ్యాయ బృందం విద్యార్థుల పక్షాన జోగిన్పల్లి సంతోష్ కుమార్ గారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ స్కూల్కే కాకుండా ఆయన వేల్పూర్ గ్రామానికి ఒక 35 లక్షల రూపాయలు ఇండోర్ స్టేడియం కూడా ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే 25 లక్షల రూపాయలు హై స్కూల్లో రూమ్ల కోసం ఇవ్వడం జరిగింది. जिला कामरेड्डी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के तौर पर M किरण कुमार ने ओहदे का जायजा हासिल किया। जिला कामरेड्डी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले M किरण कुमार को कलेक्टर आशीष संगवान ने मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए मुबारकबाद दी, जो कि हाल ही में मुनक़िदा ग्रुप 1 के तहत तकर्रुर होने वाले किरण कुमार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल किया। BRS कारगुजार सदर केटिया ने M सुनीता के क़याम गाह में इनके अरकान ख़ानदान से की मुलाकात। BRS कारगुजार सदर केटिया ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में M सुनीता की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने के अंदाज को सराहते हुए कहा कि रियासत में हार जीत यकसां होती है। पार्टी हर वक्त इनकी हर मुमकिना तौर पर मदद करने का इजहार किया। बाद अज़ा इनक़ाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से इन्होंने कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की इजराई अमल में लाने के 24 घंटे ना होने से पहले ही कांग्रेस कायदीन ने BRS कायदीन पर हमला किया और कहा कि हमारे दौरे इक़्तिदार में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में फ़तेह के बाद हमारे कायदीन व कारकुनान ने अपने हद को पार नहीं किया। इन्होंने कहा कि BRS पार्टी ने 7 ज़िमनी इंतखाबात और 2 कॉरपोरेशन इंतखाबात के अलावा ज़िला परिषद इंतखाबात में फ़तेह हासिल करने के बाद भी इस तरह की हरकत ना करने का इजहार। అందరినీ కలిసినాము. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు, సునీత గారు, కౌశిక్ రెడ్డి గారు, అట్లాగే మా నాయకులందరం కూడా కలిసి, మా కార్పొరేటర్లు అందరం కూడా కలిసి ఆ కుటుంబానికి ధైర్యం చెప్పడానికి, ఎన్నికలు మా కుకట్పల్లి ఎమ్మెల్యే కృష్ణారావు గారు అందరం కూడా వచ్చి వారికి ధైర్యం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే నేను ఇంకొక మాట కూడా ఇస్తా ఉన్నా, ఎన్నికల ముందు చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా. జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో ఏ కార్యకర్తకి ఏం జరిగినా కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుకునే బాధ్యత నాది, పార్టీది. వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు. ఒక ఎన్నికల్లో గెలవచ్చు, ఒక ఎన్నికల్లో ఎదురుదెబ్బ తగలొచ్చు, కానీ కార్యకర్తల విషయంలో మాత్రం ఎక్కడ ఎవరికి ఏ అన్యాయం జరిగినా, ఎక్కడ ఎవరికి ఏ చిన్న నొప్పి కలిగినా తప్పకుండా ఇదే రకంగా వాళ్ళ ఇంటి ముందుకు వస్తాం. అర్ధగంటలో వస్తా అని చెప్పినా ఇలా వచ్చినాం. రేపు కూడా ఇట్లే ఉంటాం. మంగళవారం నాడు धोखा देना हरीश राव की फितरत में शामिल है, तेलंगाना जागृति सदर के कविता। मेदक में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय समिति एक दूसरे पर तीर चलाने तक ही महदूद हो रहे हैं। KTR अब तो भी सोशल मीडिया को बंद करके बाहर आना निहायत ज़रूरी है। भारतीय राष्ट्रीय समिति हारने के बाद शिकस्त की वजह से राह करार इख्तियार करना हरीश राव की फितरत में शामिल है। इनके खिलाफ रद्द अमल जाहिर करने पर मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। इन्होंने कहा कि 15,000 उम्मीदवार मुझसे रुजू होकर पर्चा नामजदगी से दस्तबरदार होने के बारे में आगाही की और किसकी हिमायत करने के ताल्लुक से दरियाफ्त किया, लेकिन मुझे जुबली हिल्स इंतखाबात से
कोई ताल्लुक नहीं होने का इजहार किया। बाद अज़ां वो उम्मीदवार हरीश राव के पास जाने के बाद इन्होंने भी यही जवाब दिया, आपकी पसंद के मुताबिक हिमायत देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय समिति में ना होने से ही ज़िमनी इंतखाबात से दूर रहने का इजहार किया। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने हिमालय की चोटी पर चढ़ने वाली मलावत पूर्णा से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ पाकला देहात में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मलावत पूर्णा के वालिद मोहतरम मलावत देवदास का एक हफ्ता पहले नासाज सेहत की वजह से फौत होने के बाइस रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इनके मरहूम वालिद की तस्वीर पर खिराज अक़ीदत पेश किया और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करते हुए सरकारी मुलाजिमत दिलाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस मौके पर रूरल एमएलए के साथ ज़िले के कायदीन जी ए रन्ना, भास्कर रेड्डी, नरेश, मंडल सदर बी रवि, शिवाजी, परवीन, डी साइलू के अलावा दीगर मौजूद थे। మరి గత 9 రోజుల క్రితం మరణించడం జరిగింది అనారోగ్యంతో. వారు దగ్గర 9-10 నెలల నుండి హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతూ మరి అనారోగ్యంతో చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళను పరామర్శించడానికి వాళ్ళ కుటుంబానికి ధైర్యం చెప్పడానికి ఈరోజు పాకాల రావడం జరిగింది. వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఆయనకు నివాళులు అర్పించి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని వాళ్ళ తల్లి గారు తర్వాత పూర్ణ వాళ్ళ తమ్ముడు వీళ్ళందరితో కుటుంబ సభ్యులతో అందరూ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. సో ఈ సందర్భంగా వాళ్ళకు ఒక భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. जुबली ज़िमनी इंतखाबात में फतेह से कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी में इजाफा हुआ है। रियासत को मज़ीद तरक्की दिलाने के लिए मज़ीद कोशिश करने का सीएम रेवंत रेड्डी का इजहार। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2 सालों में अवामी हुक्मरानी की जानिब से शुरू किए जाने वाले तरक्याती फलाही स्कीमात के समराज से हर एक तबके को मुस्तफ़ीद करवाने के बाइस कांग्रेस को 51% वोट हासिल हुए हैं। 8 दिसंबर तक 2047 तेलंगाना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया। आने वाले 2 सालों में रियासत को मज़ीद तरक्की दिलाने के लिए अपोजिशन कायदीन को पहल करने की अपील की है और इस माह की 17 तारीख को मुनक़िद होने वाले काबीना इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के लाए अमल पर फैसला लेने का इजहार किया। वो जुबली ज़िमनी इंतखाबात की फतेह में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले बूथ सतह के कारकुनान से पीसीसी सदर तक और वार्ड मेंबर से विज़रा तक तमाम को इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को ताउन करने वाले एमआईएम कायदीन असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी और सीपीएम के अलावा सीपीआई के साथ साथ मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों को इजहार तशक्कुर किया। అవసరమైన ఈ నగరాన్ని మహానగరంగా విస్తరించి ప్రపంచ స్థాయి పెట్టుబడులను ఆకర్షించి వివిధ జిల్లాలు, వివిధ రాష్ట్రాలు, వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చే పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే కాకుండా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలకు విస్తరించే విధంగా నగరాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నాం. అందుకే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కావచ్చు, రేడియల్ రోడ్స్ కావచ్చు, మూసీ నది ప్రక్షాళన కావచ్చు, మెట్రో విస్తరణ కావచ్చు, గోదావరి కృష్ణా నది జలాలు ఈ మహానగరానికి తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి అవసరమైన ప్రణాళికలు కావచ్చు, హైదరాబాదు నగరాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న ట్రాఫిక్ సమస్య కావచ్చు, ఎలివేటెడ్ కారిడార్లు కావచ్చు, ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జులు కావచ్చు, అండర్ పాస్లు కావచ్చు, రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జులు, రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జులు కావచ్చు, గల్లీలలో ముఖ్యంగా చెత్త ఒక ప్రధాన సమస్యగా మారింది. शहर निज़ामाबाद के विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक साल अव्वल तुलबा के लिए फ्रेशर्स डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। निज़ामाबाद के विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक में दाखिला हासिल करने वाले साल अव्वल के तुलबा को ग्रेजुएशन से खुश आमदीद करते हुए फ्रेशर्स डे प्रोग्राम का कॉलेज के अहाते में इनेकाद अमल में लाया गया, जो कि तुलबा में तालीम वाबस्तगी, नज़्म व ज़ब्त और समाजी ज़िम्मेदारी को उभारने के मकसद के तहत इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर एसीपी ट्रैफिक मस्तान अली, शी टीम एसआई शरावंती, रोड सेफ्टी ऑफिसर निहाल ने शिरकत करते हुए ट्रैफिक क़वानीन के अलावा समाजी ज़िम्मेदारी के तय तुलबा को मुफीद तजावीज़ दी।
اس موقع پر ACP ٹریفک مستان علی نے طلباء کو ٹریفک قوانین پر عمل آوری کرنا نہایت ضروری ہونے کے تعلق سے وضاحت کیا اور کہا کہ گاڑی چلانے والے افراد اپنے سر پر ہیلمٹ لگاتے ہوئے حکومت کی جانب سے فراہم کردہ ٹریفک قوانین پر عمل آوری کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام کے اختتام پر سینئر طلباء کی جانب سے متاثرین انداز میں ثقافتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بعد ازاں انعقاد عمل میں ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ के तहत नए तुलबा के एतमाद और लगाव में इजाफा हुआ। రూపంలో సిగరెట్ల రూపంలో గంజాయి సేవించారు। భవిష్యత్తు ఉన్న మీరు ఒక క్షణం ఆనందం గురించి దయచేసి ఎవరు కూడా ఏ రూపంలో కూడా మీ బ్లడ్ లో కలిసిపోతుంది। మేము టెస్ట్ శాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి అపరిచిత వ్యక్తులతో సాన్నిహిత్యం గాని ఏదన్నా వాళ్ళు ఇస్తే ఏ వస్తువును కూడా తీసుకోకుండా జాగ్రత్త పడాలని చెప్పి యువకులను మీ సోదరులందరినీ కోరుకుంటున్నాను, రిక్వెస్ట్ చేస్తాను। మీకు తెలియని नासाज सेहत की वजह से बी किरण की दादी निम्स हॉस्पिटल में शरीक होने के बायस रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने CMRF चेक किया हवाले। नासाज सेहत की वजह से बी किरण की दादी निम्स हॉस्पिटल में शरीक होकर तिब्बी इमदाद के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के ताल्लुक से नराला रत्नाकर की जानिब से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी से की गई नुमाइंदों के फौरी बाद इन्होंने मुसब्बित रद्द अमल जाहिर करते हुए हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत 3,75,000 रुपये का LOC मंजूर करके हवाले करने के बाइस मुतासरा ख़ानदान ने रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को इजहार तशक्कुर किया। शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी रेलवे ओवर ब्रिज की तामीरी कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की रियासती हुकूमती मुशीर P सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। ज़िला निज़ामाबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी रेलवे ओवर ब्रिज तामीरी कामों को जंगे खुतूत पर मुकम्मल करने की रियासती हुकूमत के खुसूसी मुशीर P सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी, जो कि ज़िला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर TV ने कृष्णा रेड्डी के हमरा ROB कामों पेश रफ्त पर इससे मुतालिक ओहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाने के दौरान तामीरी कामों के बारे में मशावरत करते हुए ओहदेदारों को अहकामात सादिर किए। श्रीकोंडा मंडल के तुमपल्ली देहात में वाक़े मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने अचानक तनखी अमल में लाई। श्रीकोंडा मंडल के तुमपल्ली देहात में वाक़े मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल का निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने अचानक तनखी अमल में लाई। इस मौके पर मौजू के अवाम ने खांगी स्कूल में तालीम हासिल करने वाले UKG के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में शरीक करने का फैसला किया, लेकिन प्राइमरी स्कूल में मुनासिब कमरा जात ना होने के बाइस ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने वाले तुलबा का मुशाहिदा करने वाले रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने बज़रिए फ़ोन के तहत ज़िला एजुकेशन ऑफिसर से बात करते हुए फौरी तौर पर इक़दामात करते हुए तुलबा के लिए मुनासिब कमरा जात मुख्तस करने की हिदायत दी। इस मौके पर रूरल MLA के साथ साथ श्रीकोंडा मंडल सदर B रवि, DCC सेक्रेटरी भास्कर रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। अख्ताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जुबली ज़िमनी इंतखाबात में फतेह से कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी में मज़ीद इजाफा हुआ है। वो रियासत को तरक्की दिलाने के लिए मज़ीद कोशिश करेंगे। मीडिया से CM रेवंत रेड्डी का खिताब। इस प्रोग्राम में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ और रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा डिप्टी CM T विक्रमाकार का हमरा मौजूद। एड़पल्ली मंडल के जंगापेट में वाक़ अशोक सागर तालाब में जिला कलेक्टर TV ने कृष्णा रेड्डी के हमरा रियासती हुकूमत के खुसूसी मुशीर P सुदर्शन रेड्डी ने मछलियों के बच्चों की इजराई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर 1.3 करोड़ रुपये फंड से शुरू किए जाने वाले मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल भवन की तामीरी कामों की इफ्तिताह तकारीब साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। धोखा देना हरीश राव की फितरत में शामिल है। मेदक में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से तेलंगाना जागृति सदर के कविता का इजहार। BRS कारगुजार सदर केटिया ने ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला करने वाली M सुनीता के क़यामगाह पर इनके अरकान ख़ानदान से की मुलाकात।
वो पार्टी की जानिब से हर मुमकिना तौर पर मदद फराहम करने का दिया तयक्कुन। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने हिमालय की चोटी पर चढ़ने वाली मलावत पूर्णा से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।